Hello everyone. Welcome back to the program Spoken English. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya helping you out to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate grammatically, effectively, fluently, and with great authority and command in a certain given situation. Guys, let's get it started. And as I tell you that we had this one program, simple but meaningful, under the heading of simple but meaningful. In spoken English, we have given 5 points to discuss, and we see how these 5 points are important, and in the process we learn how to develop the ideas, how to learn new things, new ideas, and this is a simple, but it develops your thinking power. So this program also develops your thinking power. You can start thinking in English. So let us see. It always seems impossible until it is done. It always seems impossible unless until it is done. तो ये जो है, कोई भी काम करने के पहले काम जो है असंभव सा लगता है, और जब तक उसे पूरा नहीं कर लेते तो लगता है कि असंभव है, लेकिन कोई काम असंभव नहीं है। नेपोलियन क्या करता था? इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ रूल्स। असंभव शब्द सिर्फ किसके शब्दकोश में मिलता है? मूर्खों के शब्दकोश से मिलता है। देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल दैट यू कैन नॉट डू। मैन इज द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग। अभी आप रिसेंटली यू सी दैट देयर इज वन Dasarath माझी, and his work is also displayed, that he has made a road through the mountain, through the hill. So looking at this, that one man can just break the entire mountain and make a road through it, that is impossible. But it is possible. It is possible. He has made it possible, and everybody knows that he is one man who can never thought that any work in life is impossible. So it always seems impossible until it is done. आपको बहुत सारी चीज़ें असंभव सा लगती होंगी। जैसे किसी को आप देखते हो, बहुत बड़ा आदमी है, तो आपको लगता है बहुत ये कैसे ऐसे हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इतनी किताबें कैसी पढ़ी होंगी, ये भी कुछ नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग। कैसे किया जाता है? यू जस्ट पुट इट इनटू स्मॉल सिलेबस। यू जस्ट ब्रेक द वर्क। यू जस्ट ब्रेक द माउंटेन ऑफ वर्क। अगर आपको बहुत बड़ा काम है, आप उसको ऐसे तो नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डन, लेकिन उसको आप थोड़े थोड़े करिए, in a bit by bit, small in a small amount, in a little go, you just start. तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये काम करना है, and consistently you have to do and regularly you have to do, तो आपको कोई काम असंभव नहीं है। तो ये बताता है कि it always seems impossible unless the work is not done, it looks impossible. आप डीएम बन गए, लेकिन तब जब आप डीएम नहीं बने थे, तब आप लगता था कैसे डीएम बना जाता है, कैसे इतनी किताबें पढ़ेंगे, कैसे इंटरव्यू देंगे, कैसे होगा। लेकिन when you cross everything, crack the examination one by one, and you start your journey of working, then it becomes easy and easier to you. Now you can tell other boys how to crack the same work, the same examination. So guys, it is always seems impossible until it's done. जब तक हम कोई काम उसको कर नहीं लेते, तब तक ये असंभव सा लगता है। तो इसको
इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिकम IAS बाय लुकिंग, इट लुक्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट व्हेन यू स्टार्ट, you start doing bit by bit, then it becomes easier, and the more you work, the more it becomes easier, and finally you crack, and then you win, and the work which looks like a mountain disappears like a small piece of work. So this is what this means. अब आते हैं गेट ओवर इट। गेट ओवर इट का मतलब होता है कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया। गेट ओवर इट का मतलब होता है लेट इट बी गॉन, समथिंग हैपेंड, नो नीड टू थिंक ऑफ द पास्ट, नो नीड टू थिंक योर वेस्टेड टाइम दैट यू हैव वेस्टेड, no need to think the wasted money, because it cannot be undone. So let it be gone. So let you never think of the past. You never think. So to get up, it means that they want you to forget about it and move on. They want you to stop reflecting on the past or something that has upset you and to focus on the present and future. So something bad happened to you, कुछ चीज़ें खराब आपके साथ हुई, तो फिर आप if you continue to think over it, if you continue to upset yourself because of that, तो लाइफ विल नॉट गो। सो गेट ओवर इट। गेट ओवर इट मतलब क्विट इट, फॉरगेट इट, फॉरगेट व्हाट हैड हैपेंड, सो फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड, सो यू स्टार्ट न्यू, मूव ऑन टू योर प्रेजेंट, टू योर फ्यूचर। योर प्रेजेंट इज अहेड, यू वर्क ओवर दिस एंड फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट द बैड थिंग्स दैट गिफ्ट योर लाइफ फॉर सम टाइम। तो ये पुरानी चीज़ों को भूल जाने के लिए कहा जाता है गेट ओवर इट। गेट ओवर इट का मतलब फॉरगेट द पास्ट। you had in love with some one who cheated you, so you had a shock. So let it get over, let it get over and start afresh. Continue your life. What happened has happened. Let begone be bygone. So इसको जाने हो गया तो हो गया, उस पर सोचने की बात, वो जो खत्म हो गया उसको जाने दो। सेकेंड थिंग, थर्ड इज हेड ओवर हिल्स। हेड ओवर हिल्स का मतलब होता है ये है टू डीपली लव इन, टू बी लव। इसका मतलब होता है टू बी इन लव, टू बी इन लव। और ये ऐसा नहीं टू बी डीपली इन लव। आप किसी से बहुत बेइंतहा प्यार कीजिए, उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, हेड ओवर हिल्स, हेड ओवर हिल्स। जब आप बेइंतहा प्यार करते हैं किसी को तो उसको बोलते हैं हेड ओवर हिल्स। दे हैव फॉलन हेड ओवर हिल्स, मतलब दे आर इन डीपली लव, दे आर इन लव डीपली, तो ऐसे कर सकते हैं दे हैव फॉलन हेड ओवर हिल्स। अच्छा, टू गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। रैग्स टू रिचेस का मतलब आप फिल्मों में देखते होंगे कि हीरो जो है वो बहुत गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, वो भिखारी था, और फिर वो धीरे धीरे जो है उसका भाग्य चेंज होने लगा। फिर इसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर इसके बाद बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा था, मेयर ऑफ कैस्टरविल्स, जैसे टॉमस हॉर्डी का है ना, कि हेंसल जो है वो बहुत ड्रंकार्ड था, इसके बाद वो शराब छोड़ दिया, फिर बहुत बड़ा आदमी हो गया। तो इसे वो रैग्स मतलब होता है गरीब, और रिचेस मतलब अमीरी।
जो गरीबी से बहुत गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ा हो, तो उसको बोलते हैं रैग्स टू रिचेस। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन आवर कंट्री ऑल्सो। आवर बिजनेस टाइकून से अंबानी ग्रुप जी, द अंबानी धीरूभाई अंबानी, he was very poor man those days, working a hotel, very small hotel. Now how he worked hard, how he established his business, and because of his hard work, because of his foresightness, because of his skills, because of his behavior, he went from rags to riches. rags to riches, एक भिखमंगा की स्थिति से बहुत बड़े मतलब धनी के। तो when you proceed from rags to riches, your lifestyle changes. You have been changed dramatically from one extreme to another, गरीबी से बिल्कुल अमीरी की तरफ। तो that is called to go from rags to riches. Tata, Birla, they were all, Birla, see, was a very poor businessman, and his utensil, उसका थाली लोटा सब जो है गिरवी रखा हुआ। अभी भी जाकर के देखो, you go to म्यूजियम, कलकत्ता म्यूजियम, you find that his पान थिंग्स, गिरवी रखी गई चीज़ जो बिरला की है अभी भी रखा हुआ। उसने अपने थाली को, अपने लोटा को गिरवी रख दिया था बिजनेस चलाने के लिए, तो इट इज़ स्टिल देयर। तो हाउ बिरला ही वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, किस तरह वो गरीबी से अमीरी की तरफ आज। बिरला तो बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी बड़ी साख भी है हिंदुस्तान में। तो बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट वर्क, तो रैग्स टू रिचेस। अन्यथा तो ये फिल्मों में बहुत होता है, फिल्मों में तो जल्दी दिखाई देगा, लेकिन इन रियल लाइफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी कमिटेड, टू बी डेडिकेटेड टू योर वर्क, ओनली देन यू कैन रन फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, यू कैन गो फ्रॉम द rags to riches. And the last one is cash cow. Cash cow को कहते हैं हिंदी में जब उसको ट्रांसलेशन करें कि दुधारू गाय, तो ये आदमी के लिए कहा गया है, ये गाय के लिए नहीं कहा गया है। तो ऐसा आदमी जो हर समय आपको पैसा दे, जो आपके लिए हर समय जो है आपको इनकम ऑफ सोर्स बने, उसको बोलते हैं कैश काउ। कैश काउ कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई आदमी जो इस तरह का काम करता है उसको हम कैश काउ कहते हैं। कैश काउ का मतलब द one who offers you ready-made money, one who offers you ready-made money। कुछ तो है कमाना पड़ता है, कुछ पास पैसा रखा हुआ आप लेकर वहाँ पर आप उसको यूज़ कीजिए। तो ये कैश का मतलब होता है। अगर आप इंडियन हैं, आपको अच्छा ये समझ में आता है दुधारू गाय किसको कहते हैं, तो आप समझिए कि कैश काउ किसको कहते हैं। तो कैश काउ इज ए पर्सन who has ready-made money for you anytime, anywhere you need. So it may be some person, it may be some company, it may be some organization that can offer you ready-made money when you need. Is called cash cow. Cash cow. तो इसका भी प्रयोग कर सकते हो। Any company may be prove a cash cow to you. Any person may prove a cash cow to you. Any organization may prove a cash cow to you. So all these things which is attached with money, ready-made money, तो उसको बोलते हैं कैश काउ। तो guys, I have told you these 5 simple things, but they are very meaningful. तो
that's why the title is Simple but Meaningful. So that's all for today. We continue in this way with some idioms, with some expressions, and then you will enrich your spoken power. That is, you may be able to speak it with confidence. So that's all for today. Thank you.